Hello students of class 11. Today we will be going to start the new chapter, that is chapter 2 of your biology syllabus, that is about the biological classification. Now before moving further, first we have to know that what are the types of classification. Now if I say types of classification, then I mean that actually there are three types of classification which we need to study and which we need to remember. The first one will be about the artificial classification. The second one will be natural classification, and the final one will be phylogenetic classification. Now we will be going to discuss each one of them individually. First of all, if I say about artificial classification, we need to remember who are the scientists who made their contribution in this type of classification. First, artificial type of classification was given by the father of taxonomy, that is Carlos Linnaeus. Okay? Next, the natural system of classification was given by two scientists, Bentham and Hooker. Okay? And the phylogenetic system of classification, which is the modern day classification, that was given by the scientist John Hutchinson. Okay, so we have three different type of classification: artificial classification, which was given by Carlos Linnaeus; natural classification, that was given by Bentham and Hooker; and the phylogenetic classification, that was proposed by John Hutchinson. Now, what are the main differences between these all kind of classification? Why some of the classification rules got discarded, and why the basic concept, that is the natural and the phylogenetic classification, is being studied till date? Why the artificial was rejected? We will be talking this one by one. चलिए एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जैसे हम लोग बोले कि किसने दिया था, ना कार्लोस लिनियस ने. अब इसके अंदर हमें जानना है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी कैरेक्टर्स लिए गए थे, वो सारे कैरेक्टर्स एक तो बहुत ही सुपरफिशियल कैरेक्टर्स लिए गए थे. सुपरफिशियल कैरेक्टर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सुपरफिशियल कैरेक्टर्स? अगर मैं बात करूं, बिल्कुल ऊपर ऊपर के आपके कैरेक्टर्स लिए गए थे जो नॉर्मल इंसान देख के और उसको महसूस करता है. क्लियर है? ठीक है. अब कैसे सुपरफिशियल कैरेक्टर्स? और बहुत ही लिमिटेड सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के ऊपर बेस करके ये क्लासिफिकेशन सिमिलैरिटीज के ऊपर बेस करके ये क्लासिफिकेशन किए गए थे. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स को क्लासिफाई करने के वक्त दो ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया था. एक ग्रुप विच कैन फ्लाई और दूसरा था विच डू नॉट फ्लाई. ओके, इसमें क्या हुआ था ना, एनिमल्स को जब क्लासिफिकेशन करा गया था तब एनिमल्स वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. वन ग्रुप considering of all the animals which could fly and the other which could not fly. Clear? इससे हुआ क्या ना, इसके जरिए एक ही ग्रुप के अंदर इंसेक्ट्स भी आ गए थे. सर, इंसेक्ट्स फ्लाई कर सकता है. बर्ड्स भी आ गए थे. आप नाम सुने हो द फ्लाइंग फॉक्स,
ये भी आ गया था। बाद में आप पढ़ोगे एक फ्लाइंग फिश भी आता है। तो ये फॉक्स एंड फिश वर जनरली कंसिडर्ड टू बी द वर्टिब्रेट्स। अगर हम लोग बात करेंगे क्लास 9 में भी आप पढ़ के आए हैं। तो इसमें देखिए इंसेक्ट्स जो आज हम लोग जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा के अंदर है, बर्ड्स जो कि एवीज के अंदर रहता है, तो ये सारे के सारे एनिमल्स पहले एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया था। क्लियर है? ठीक। तो इसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पता ही नहीं चला। अगर मुझे ये पूरा का कहां आपका एक फिश का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कहां एक बर्ड का कैरेक्टर होगा और कहां एक इंसेक्ट का कैरेक्टर होगा। Clear? So there is a lot of differences today we have studied in class 9th. But at that time when artificially classification was done by Carolus Linnaeus, animals, all insects, birds, all these were kept under one particular group. Clear? And like which do not fly, that is, if I talk about the ostrich, if I talk about man, if I talk about most of the fishes, they were all kept under one group because they did not had the ability to fly. Okay, so this was the type of animal classification. How was the plant classification done? Plant classification was mainly done on the aspect of the height. Okay, so according to the height purpose, we had the herbs, the shrubs, and the large trees. Clear? ठीक। तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे ऊपर ऊपर के कैरेक्टर्स को लेके ही, जैसे हाइट तो एक सिर्फ आप एक नॉर्मल कैरेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्या उसका सेल है, क्या उसके अंदर की चीजें हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फूल का कैसा स्ट्रक्चर है, पिगमेंट का कैसा स्ट्रक्चर है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उन सब चीजों को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखते हुए खाली ऊपर ऊपर करके क्लासिफाई किया गया था। ठीक। और इसीलिए ही क्योंकि बहुत ही इनएडिक्वेट कैरेक्टर्स यहां पे लिया गया था, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गॉट रिजेक्टेड। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इस सिस्टम के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिया गया था जिसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द नेचुरल क्लासिफिकेशन। और नेचुरल क्लासिफिकेशन वॉज प्रोपोज्ड बाय द साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट मैंने पहले भी बताया था, बेंथम एंड हुकर। ओके, दिस टू साइंटिस्ट प्रोपोज्ड द नेचुरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमें पता चलेगा कि नाउ अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वर टेकन इनटू अकाउंट। और ये कैसे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना? बोथ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो लिए गए थे। मॉर्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चरल, और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स भी लिए गए थे। एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल। ठीक। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या लिया गया ना? जैसे सपोज करिए यहां पर भी हाइट कैन बी अ फैक्टर, यहां पर द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलिटन। क्लियर? और स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलिटन की अगर हम लोग बात करेंगे, यहां पर ही आपके हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट द होमोलॉगस ऑर्गन्स। याद करिए क्लास 10th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। ऑर्गन्स विच आर सेम ओरिजिन बट विच फंक्शंस डिफरेंटली। ठीक। ठीक वैसे ही
एनालॉगस ऑर्गन्स, जिसका फंक्शन तो सेम होगा बट ओरिजिनली बिल्कुल अलग अलग होंगे। ठीक, तो ऐसे जब हम लोग डेप्थ स्टडी करते हैं तो वैसे करके आपका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इसके अंदर लिए गए। अगर मैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर बात करूं तो सबसे पहले जो है दैट इज द सेल्यूलर कंपोनेंट्स। कैसे करके अलग अलग सेल से ये बने हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। एक शब्द है ऑन्टोजेनी, एंड ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट कैसा हो रहा है सर, हाउ इज द डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग। ठीक, द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टू द एडल्ट स्टेज, कैसे करके आपका डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स है, चाहे केमिकल इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, द डीएनए आरएनए कॉम्पोजिशन, ये सारा चीज मतलब एकदम हर चीज को देखते हुए आपके नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, और ऑटोमेटिकली अगर सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी मिले, अगर मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म और है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, और इन दोनों ऑर्गेनिज्म में अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपके सिमिलैरिटी मिल गया तो फिर उस दो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ द हायरार्की, दैट इज द स्पीशीज। ठीक है, तो हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि कैसे करके एक ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए, कैसे उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया है। कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन proposed by John Hutchinson। नाउ यहां पे हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा व्हाट डज दिस वर्ड फाइलोजेनेटिक मीन्स। फाइलोजेनेटिक इज अ वर्ड which also tells us about the evolutionary significance of that particular organism. Like, if today suppose we are human beings, what is our scientific name? Homo sapiens. We, from where do we originate? We originate from the primates और द एप फैमिली। बट ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपके एप फैमिली से आपके इंसान पूरा अच्छी तरह, आज जो होमो सैपियंस आप देख रहे हैं हम लोग, वो होमो सैपियंस आपके डेवलप होकर रखे हुए हैं। ठीक, ये भी एक आपका ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल चेंज है, और यही ग्रेजुअल चेंज विथ टाइम हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। तो आज हम लोग मान लीजिए यहां पे आपके होमो सैपियंस है और यहां पे आपके द एप फैमिली थे, तो क्या क्या स्टेजेस होने के बाद हम लोग होमो सैपियंस बने आज की। ठीक, जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे, द एवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक, वैसे ही एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स हम लोग देखेंगे आगे की क्लासेस में। तो जहां पर एवोल्यूशन कैसा हुआ उस ऑर्गेनिज्म का हम लोगों को पता करना है, कैसे वो जिस ऑर्गेनिज्म से आया है। सपोज करिए हम लोग बोलते हैं कि फिश, पाइसेस, पाइसेस से हुआ आपका एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टिलिया, एवीज, एंड फाइनली द मैमल्स। तो क्या कोई कनेक्शन है मैमल्स और एम्फीबिया के बीच? क्या कोई कनेक्शन है बिटवीन द पाइसेस एंड द रेप्टिलिया? यस, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जो हमें कौन से टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन से बताया जाता है? दैट इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। So today what we are, the classification which we are studying, that is actually a combination of both the natural system of classification along with the phylogenetic system of classification. Okay? So now we will be getting into the advanced, like we had talked about the five kingdom system. Who proposed it? R.H. Whitaker, which we have already studied in class 9. Today we will be taking a step ahead and we will be telling about the domains of life.
Okay, so it is either the 6 kingdom system of classification, or rather it is not the kingdom, a step ahead of it, that is the 3 domains of life. We will be discussing about it. So now we will be discussing about the 3 domains of life. Again, who proposed it? It was proposed by Carl Woese. Okay, we have studied about R.H. Whittaker. He gave the 5 kingdom system of classification, and Carl Woese gave the 3 domains of life. See, actually, if we see a timeline, we will be introducing over here 3 periods. One, before 1969, another from 1969 to 1990, and the other will be after 1990. If we take this timeline, it will be very much better to understand. Like before 1969, there was only the 2 kingdom system was prevalent. मतलब अगर हम लोग 1969 से पहले की बात करें तो तब सिर्फ जो 2 kingdom system था, which was proposed by Carolus Linnaeus again, that was prevalent. After that, from the time period of 1969 to 1990, आपके 2 kingdom से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, and we got the 5 kingdom system of classification. 5 kingdom system of classification. और 1990 के बाद एक साइंटिस्ट आपके जो डॉक्टर कार्ल वूज थे, वो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. एंड देन ही फाउंड कि ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये आपके आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हो सकता है. याद करिए, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होगा तो प्रोकैरियोट्स मतलब मोनेरा किंगडम के अंदर रहेगा. तो उन्होंने ज्यादातर मोनेरा किंगडम का स्टडी किए थे, और तब उनको पता चला कि मोनेरा किंगडम के अंदर भी ऐसे कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर काफी सारे हद तक डिसिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस पाए गए थे. क्लियर है? और तब उन्होंने सोचा कि मोनेरा को भी हमें अलग करके उनके अंदर 3 अलग अलग किंगडम्स बनाया जाना चाहिए. और देन ही थॉट कि यस, वी हैव टू इंट्रोड्यूस द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. ठीक है? तो ये जो डोमेन है, एक्चुअली दिस इज ऑफ अ हायर टैक्सॉन देन द किंगडम. हम लोग किंगडम से लेके और स्पीशीज तक जानते हैं. क्लियर? कि 5 किंगडम सिस्टम के अंदर सबसे जो आपका हाईएस्ट टैक्सोनॉमी है, टैक्सॉन है, दैट इज द किंगडम. बट कार्ल वूज ने बोला कि इसके ऊपर भी आपका रह जाएगा, दैट इज द न्यू टैक्सॉन आफ्टर 1990, दैट इज इट विल बी द डोमेन. ओके, सो आफ्टर द 5 किंगडम सिस्टम केम द टॉपिक ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं कौन से 3 डोमेन्स थे विच वॉज प्रोपोज बाय कार्ल वूज. डोमेन 1 was named as Archaebacteria. Domain 2 was bacteria, and domain 3 was eukaryota. All the names must be sounding very confusing, but believe me, if you listen to this video very carefully, you will be able to mug up with all the terminology. Terminology is very, very important in biology. So please listen to this video and go through writing down in your copies. So first of all, you can see here both this group consist of bacteria. That means the kingdom Monera, which consisted of all the bacteria due to certain kind of differences in
the kingdom of Monera, Carl was differentiated that Monera into two different groups, that is one considering to be the Archaebacteria and one considering to be the bacteria. Now, what is the meaning of archae? Archae means ancient. What is the meaning of the word archae? It means ancient. That means all the organisms which are belonging to the Archaebacteria, they can be considered to be the oldest living organisms. I can consider them to be the oldest living organisms or the earliest living organisms on earth. So we will be now seeing how these organisms are different from the actual bacteria. If we consider or talk about the cell wall, the first differentiating factor will be in this. We know that the cell wall of bacteria is made up of peptidoglycan, a compound which is only present in the bacterial cell wall. But if I talk about the cell wall in Archaebacteria, it consists of polysaccharides plus your proteins. Here in Archaebacteria cell wall, there will be no peptidoglycan present. Clear? So because of this, the polysaccharides and the proteins, this property is giving a very good advantage to the members of the Archaebacteria. क्या एडवांटेज दे रहा है? Now, due to the archaebacterial cell wall making up of the polysaccharide and protein, these organisms can survive in extreme harsh conditions. I hope you are getting it. Clear? एक बार देखिए क्या बोल रहा हूं मैं ना. आर्केबैक्टीरिया का सेल वॉल डिफरेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल से. बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना हुआ होगा? पेप्टिडोग्लाइकन. और अगर मैं आर्केबैक्टीरिया की सेल वॉल को पकड़ूंगा तो ये हो जाएगा किससे बना हुआ? ना पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन. और क्योंकि ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों सेल वॉल में, तो ये जो पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन का मेडअप ऑफ सेल वॉल है, ये कहीं ना कहीं एडवांटेज दे रहा है आर्केबैक्टीरिया को. किसके लिए? टू सर्वाइव इन द मोस्ट हार्श कंडीशंस ऑफ द एनवायरमेंट. क्लियर? तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग आर्केबैक्टीरिया को अलग अलग किंगडम्स के अंदर डिवाइड करते हैं. क्या क्या? सबसे पहला हो जाएगा द मिथेनोजेंस. मिथेनोजेन से हमें क्या पता चला? नाम में ही छुपा हुआ है मीथेन प्रोड्यूसिंग. सो दीज बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी नोन एज द मीथेन प्रोड्यूसर्स ऑन अर्थ. नाउ वेयर इज दिस मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड? I hope you remember methane is also known as marsh gas. So wherever there is marshy area, जहां पे दलदल होता है सबसे ज्यादा, वहां पे प्रोड्यूस होता है कौन सा गैस? मीथेन गैस. इवन जो हम लोग बायोगैस पढ़ते हैं क्लास 10th के अंदर, आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो बायोगैस के अंदर भी जो आपके मेन कंपोनेंट है दैट इज ऑल्सो द CH4 मीथेन. क्लियर? और बायोगैस किससे बनता है? गोबर से बनता है. गोबर किसके एक्सक्रीटा है? जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके एक्सक्रीटा है. जो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनके अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं. क्लियर? तो वहां पर भी मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इन द गट और द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द हर्बीवोर्स. क्लियर? कोई दिक्कत? ये जो आपके मिथेनोजेंस है, ये बिल्कुल जहां पे मीथेन जहां पे प्रोड्यूस होगा वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा. तो जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे सर्वाइवल रेट वैसे ही बहुत डाउन हो जाएगा. पर उस कंडीशन के अंदर भी ये बहुत अच्छी तरह वहां पे सर्वाइव कर सकता है.
क्लियर? तो वन ऑफ द मोस्ट हार्श कंडीशंस हो गया आपका. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द थर्मो एसिडोफाइल्स. दो शब्द है इसके अंदर देखिए. एक तो थर्म. थर्म शब्द का मतलब होता है क्या? हीट. और दूसरा है यहां पर एसिड. सो हीट प्लस एसिडिक कंडीशन के अंदर जो आपके बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है. तो अगेन एक ऐसा कंडीशन जो कि बहुत ही ज्यादा हार्श होगा, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होगा, जहां पे आपके नॉर्मल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकता है जिंदा. ठीक? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सेल वॉल, दे कैन इजिली सर्वाइव इन द मोस्ट हार्श एनवायरमेंट, दैट इज वेयर देयर इज एक्सट्रीम हीट एंड एसिडिक. ये कहां पर पाए जाते हैं ना? सबसे ज्यादा ये हमें मिलेंगे इन द एरियाज वेयर देयर आर हॉट स्प्रिंग्स, वेयर देयर आर वॉल्केनिक इरप्शंस. इस जगह पे आपको मिलेगा. आप खुद सोचिए वॉल्केनो का लावा का टेम्परेचर कितना होता है, बट वो लावा जब सूखने लगेगा तो वहां पर भी आपके ये ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे. क्लियर? तो हॉट स्प्रिंग्स, ये सब जगह पे आपके थर्मो एसिडोफाइल्स मिलेंगे. द थर्ड किंगडम इनसाइड द आर्केबैक्टीरिया विल बी कंसिडरिंग अबाउट द हैलोफाइल्स. सर, हैलो शब्द जो है, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट लवर्स. हैलो शब्द का मतलब क्या है? सॉल्ट लविंग ऑर्गेनिजम्स. सर, सॉल्ट अगर आपका प्रेजेंट होता है तो हमें पता है सी वाटर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट्स आर प्रेजेंट. बट वही सॉल्ट अगर मैं जब सी वाटर को इकट्ठा करके एक लगून के अंदर रखता हूं और आई एम लीविंग इट फॉर इवेपोरेशन, जहां पे सॉल्ट बनता है, वहां पर बहुत ही आपके कम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. ठीक? क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी आपका नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही हम लोग रखेंगे, बिकॉज दैट विल बी हाइपरटोनिक, तो पानी निकल जाएगा कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, एक ऑस्मोसिस हो जाएगा. बट वहां पर भी आपके ये ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छी तरह रहेगा, इवन ज्यादा मात्रा में रहेगा. क्यों? बिकॉज दे आर द सॉल्ट लविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? ठीक? तो ये हो जाएंगे तीन आपके, द मिथेनोजेंस, द थर्मो एसिडोफाइल्स एंड द हैलोफाइल्स, which will be coming under the archaebacteria. Clear? Tomorrow we will be discussing about the bacteria and further we will be taking on to the eukaryota. Clear? So we were studying about the Calvus domains of life. There are the three domains, the archaebacteria, bacteria and the eukaryota. Bacteria and archaebacteria, how are the difference? Due to the main difference is that the chemical composition inside the cell wall, one will be made up of the peptidoglycan and the cell wall of the archaebacteria will be made up of different kind of polysaccharides and proteins. Okay, so this type of a cell wall is helping them to survive in the most extreme conditions around the world. Okay, if we differentiate archaebacteria into three kingdoms, the three kingdoms will be the methanogens, the thermoacidophiles and the halophiles. This is also mentioned in your NCERT. You can go through it and in case of any doubt, you can easily put your remarks in the comment section or you can easily contact me through WhatsApp or call me. So tomorrow we will be going and we'll be extending further with the bacteria and with the eukaryote. Thank you.